said that, you see, after working for 40 years as a film director, writer, producer, I came to a point when I had money, I wanted this knowledge, experience and money, I wanted to give back to my younger generation as any human being. And I thought of setting a film school in Bombay. Because for the 100 years of cinema, if you look at it, all the film producers could make only studios. Narrow Studio, Vishaka Studios, all those. But unfortunately, that was an era where the education was not important. It was the industry of instinctive talent. See, not a really formalized training schools and organizations. So I wanted to happen that our industry be organized industry with the real professionals, with the real background and good training behind them in the field of art, science, commerce, in cinema and in media. So I thought of the next generation, and I'm glad that now we have set up this institute in Film City. And today I'm proud to say, and I must give credit to my faculty. You see, I feel that every institute becomes big, not because of the name of a person like Subhash Ghai, not because of the buildings or money you spent on it. It is because of the teachers. Every institute जो है, वो marketing से नहीं चलता है. उसके पीछे जो उसके अध्यापक हैं, teachers हैं, gurus हैं, वो किस तरह के हैं. And the biggest problem in setting up this Muslim Books was there was no teacher. Because इस तरह के film school, media school 2000 में, 2001 में, किसी ने सोचा भी नहीं था, खोला भी नहीं था. तो उस वक्त मुझे बहुत प्रॉब्लम थी टीचर्स की. पैसे की भी नहीं थी, पैसा था मेरे पास, डिजाइन भी कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन टीचर्स कहाँ से लगेंगे. और मैंने अपने इंडस्ट्री के जितने दोस्त थे उन सबसे रिक्वेस्ट किया. एंड इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी टू कन्विंस देम टू कम आउट ऑफ द प्रोफेशन एंड बिकम अ टीचर. यू सी, सो जो भी बेचारे कर सकते थे वो करें. I requested Nasruddin Shah. I said, you handle acting course. I brought Rajan Kothari, a very big cameraman, to look after cinematography, some sound, some editing, some lighting, so many things. So anyway, we could get that. But I must tell you that I must give this credit that now it is the 9th year of the Muslim Books and it has become one of the top 10 in the world. Out of 1200 film schools, this is the number 6 schools in terms of facilities, technology, the teaching, the curriculum, the quality, the philosophy of education, everything, though it's private. So all credit goes to my daughter, I would say, Meghna Ghai. She worked very hard in bringing the quality of education. What I could provide her or them was the money and infrastructure. But finally she worked very hard on the quality, and that's why she contacted the best of the international faculty, international people, and we brought the deans from America 2 times and set up the discipline part of it, because this industry was very indisciplined and everything. So बहुत सी चीजें उन्होंने की, and I must give full credit to Meghna Ghai and her team. She got a fantastic team, fantastic people around her, and Mr. UKC Ujjwal, as I said, that she also contributed a lot to streamline the whole thing. So my hearty thanks to all those teachers at Muslim Books, जो कि आज brand है बहुत बड़ा, and we have opened this film school in London also. So any country ambassadors or a president who visits our film school, he says, why can't I have this like this in my country? So we are opening in various countries also the Muslim Books. हमारे भारत में अभी टाइम लगेगा समझने के लिए कि मुस्लिम वोट क्या है. वो तो जब ज़मीन मिलो तो केस कर देते हैं, पीएल आ जाता है, इनको ज़मीन दी हुई है, पता नहीं क्या करेंगे इसके अंदर. तो भारत की दशा थोड़ी सी अलग है, लेकिन हम खुश हैं कि हमारे बच्चे जो हैं 1200 स्टूडेंट्स हैव पास्ड, एंड आउट ऑफ 1200 स्टूडेंट्स 95% स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी वेल प्लेस्ड इन मीडिया इंडस्ट्री with a higher positions, not a lower position. And they are contributing a lot to the media industry, film industry, whether it's the regional cinema or the national cinema. So the students are doing brilliantly. That is also a big success. We have 20% of foreign nationals who are studying in Muslim Books, you see. And our teachers going there and teaching them
in Wesley Woods, Bradford University. Is it credible? It's a bit credible that Indian teachers going there to teach Goras, we will tell you what is art and what is the cinema. So this is what Wesley Woods have achieved. And having said that, now we have very good positions, we are in a legal position also, and we are more relaxed, and we are expanding in a big way. And particularly I have taken one initiative this year, is that to add one more cultural hub to the whole institute environment. And I call it Fifth Veda. What is Fifth Veda? Fifth Veda is that after four Vedas, Vedas are the books of knowledge and wisdom in ancient time. They had written how a man should develop, grow and die. You see. So in those fifth Veda, there was a fifth Veda after four Vedas, which was called Natya Shastra. नाट्य शास्त्र के जो अंतर्गत है उसमें डांस, म्यूजिक, ड्रामा, पेंटिंग, पोएट्री, जितने आर्ट है, आर्ट फॉर्म है, और जो कि आपकी थिंकिंग को बढ़ाते हैं, जो आपको एलिवेट करते हैं, वो कल्चरल हब हमने बनाया. एंड वी हैव कंप्लीटेड ऑन, आई स्टार्टेड दिस ईयर ओनली. एंड अंडर फिफ्थ वेदा व्हाट वी डू इज ऑन एवरी थर्सडे वी इनवाइट रिलीजन. वी इनवाइट रिलीजन लाइक हिमालय, सुब्रमण्यम साहब, वायलन, एंड Umang Kumar for painting, Ishad Kamil for poetry. So we call all those legends of the master of their art. They come to the Wesley Woods, they meet students, they perform, they take a workshop, they tell the art and technique of that particular art. So what to develop the artistic skill of students and to connect students to the ancient art in a very interesting and entertaining manner, so the students don't get bored. Because new generation is cutting off from all those ancient classic arts. They are being more you can say influenced by the Western style and the happenings and cool and all those kind of things, and forgetting their own things. It's not that I am not a conservative guy कि नहीं आपको वो करना चाहिए जो मेरे दादा ने किया था. मैं कहता हूँ आपको वो करना चाहिए जो हजारों साल पहले किया था. If you want to be modern, don't follow Dadaji's. Don't follow father parents. Follow the original man. Who was the greatest? Who was the biggest writer? Who was the biggest playwriter? Was Vyasa. तो व्यासा आज क्यों पता नहीं हुआ हमारे पास, जो ऐसा लिख के जाए कि उसके कैरेक्टर्स को लोग भगवान मानने लग जाए. उसने जो प्ले लिखा है रामायण, एक महाभारत, it was a play, and then by centuries people started to worship all those characters. अपने बच्चों के नाम रखने शुरू कर दिए. तो आप क्या समझते हैं कि 50 साल के बाद बच्चों का नाम गब्बर सिंह होगा, वीरू होगा? सो प्ले राइट ने सच हु रोट एपिकल्स, जैसे शेक्सपियर है या व्यासा है या तुलसीदास है. सो राइटर्स थे. सो कनेक्ट योरसेल्फ टू द मोस्ट ऑफ एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर, एंड यू विल सी यू विल विन इन दिस सिचुएशन, जहां पर कि हमारे बच्चे इस वक्त दे आर कंफ्यूज कि वेदर वी शुड गो फॉर यूरोपियन आर्ट, अमेरिकन आर्ट और कंटेम्पररी आर्ट. उसी चीज को इम्प्रूव कर रहे हैं. बट व्हाट वी टीच इन इंस्टीट्यूट इज गो विद द एंशिएंट आर्ट. बी लाइक हिम, बी लाइक दैट. Who 3,400 years back, 2,000 years back. If you can become that, you are going to excel in this mediocre society. इसमें रखा क्या है? किसी के पास कुछ भी नहीं है, बैंकरप्ट है सब, एक दूसरे को समझा रहे हैं और कुछ नहीं है. तो एक्सेल करने के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है. That is why we started fifth Veda in it, where students are enjoying it because we never knew about it. They are enjoying so much. So this is the exercise about connecting them with the classical forms. And also in this July I am opening the music of school music, school of music, where we will not कि तबला और बाजा लेके बैठ जाओ और शास्त्रीय संगीत सीखो. शास्त्रीय संगीत की पहले समझ करो, ये आया कहाँ से, कहाँ से शुरू हुआ था, उसकी वजह क्या है. हमारे पूरे माँ बाप जितने थे, दादा परदादा, शास्त्रीय संगीत की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, लेकिन समझते नहीं. इसीलिए बच्चों ने हिट करना शुरू किया, क्योंकि बच्चों ने कहा कि जब तुम समझते नहीं हो और तुम उसको प्रशंसा कर रहे हो, संस्कृत में तुम शादी करते हो और संस्कृत हमको पढ़ने नहीं देते. What a funny parents you are. So there was a lot of confusion of the interpretation of our all ancient art, generation by generation, and it went degrading. और वो पंडित ने कुछ और बोला था, किसी और ने बोला,
जैसे गीता जो है वो 7 बार लिखी गई. गीता वॉज रिटन 7 times. इफ यू गो टू द एंशिएंट आर्ट यू विल. लेकिन हम फॉलो क्या करते हैं, महाभारत में जो गीता लिखी है वही हमारी गीता है. गीता इज अ होली बुक ऑफ विजडम. गीता इज अ नेम, बट गीता हैज बीन रिटन बाय सो मेनी पीपल ऑन वेरियस सेंचुरीज. बट इफ यू कम टू नो इट, देन यू विल कम टू नो कि यार इसके अंदर नहीं, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड द ट्रुथ बिहाइंड द ट्रुथ. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स. सो वी डोंट टीच स्टूडेंट्स, वी ग्रूम स्टूडेंट्स. वी ग्रूम एवरीवन. कोई बीमार है, कोई कमजोर है, कोई होशियार है, कोई नोटोरियस है. इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हम करते हैं. और हमको भगवान ने तक बचाया हुआ है कि हम सरकार के उस यूजीसी और एसीटी में नहीं आए. सर सॉरी सर, यहाँ से इंस्ट्रक्शन वहां से आती है कि ऐसा पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, ये मत पढ़ाओ. हम बोलते हैं बच्चे जो तुम पढ़ना चाहते हो वो पढ़ो. डू व्हाट यू लव. जो तुम्हारा मन करता है, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, वही करो. कोई भी कोर्स चेंज कर लो, कभी भी कर लो. डिस्कवर योरसेल्फ, रीडिस्कवर योरसेल्फ. दैट इज द थ्योरी ऑफ मिस्टर जोश. आई एम प्राउड ऑफ दैट. एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से. बाकी ये तो प्रमोशनल प्रोग्राम होते रहते हैं, आपको पता है. सच ही है. थैंक यू. Thank you, Surajji, for your at least 200, 250 people for jobs. These are people who I have known directly and indirectly, say a friend's daughter or a neighbor's son and so on and so forth. And I hear that they want a job in, say, in advertising or in television or something, and I pick up the phone and call somebody I know in, say, Star TV or CNBC or whatever, and say, hey, there's this resume I'm going to send you. Please hire this girl, or please hire this boy. And when other people see me doing this, they often ask, how come you ask for a favor so easily? So I say, I'm not asking for a favor at all, I'm doing them a favor. When I recommend somebody for a job, I am doing them a favor. They owe me a favor. I don't owe them anything. Because what I guarantee when I pick up the phone and talk to someone is the reputation of the candidate. I am guaranteeing the integrity of the candidate. I am guaranteeing a lot of things. And today that's, reputation and integrity are a very big part of this world. It's becoming bigger. If you want to know what I did for the first 30 odd years of my life, you can't find out. You have no idea. You know my name, you know what I look like. You can Google anything on earth, you can't find anything about me in the public domain except the information that I've chosen to put out. If I tell you I went to a particular school, well, you know it because I have decided that you should know that. But that's not the way the world is today. The world has changed because the amount of information available about each of you in the public domain. If I hear the name of one of you here today, and I can go back or I can do it on my way home and Google the daylights out of you and find out precisely what you like. And that's a double-edged sword. There is so much information you put out that others can see. And that can be a big differentiator in your reputation. A lot of you are very careless, a lot of you young people are terribly careless about what you put out about yourself on social media, in the public domain, and then if I'm going to hire you, when I quickly go through what I can find out about you on Google, you'll be surprised that I might decide after spending 2 minutes on Google never to hire you in my life. Because there are things you told me about you, which I don't want to know. So be very careful and build a digital footprint for yourself. ये आप सबको पता है कि
मैं आहिस्ता आहिस्ता एजुकेशन में जा रहा हूँ फिल्मों से हट के। तो एजुकेशन में मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हमारे थिंकिंग जनरेशन होनी चाहिए, आर्टिस्ट जनरेशन होनी चाहिए। खाली टेक्निकल और खाली मैकेनिकल एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जब भी इस तरह के एंटरटेनमेंट के जो फंक्शन होते हैं, या हमारे दोस्त जो हैं दीपक चौधरी जो हैं, ये इस तरह के जब फेस्टिवल रखते हैं, इवेंट रखते हैं, तो मैं ज़रूर पार्टिसिपेट करता हूँ, क्योंकि इसमें मार्केटिंग की बात नहीं है, इसमें एजुकेशन की बात है। जो कि नई जनरेशन आज चाह रही है, जितने भी बच्चे हैं मैं देखता हूँ कि वो चाहते हैं कि हम मीडिया में जाएँ, हम अपने आर्ट को एक्सप्रेस करें, हम आर्टिस्ट बने, हम थिंकर बने, हम डिज़ाइनर बने। तो इन सबको इंप्रेस करने के लिए इस तरह के जो इवेंट हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले इसको आप ठीक कर लेंगे। मैं पॉलिटिशियन को होने के मैं ऐसे बोलता रहूँगा, ये गिर रहा है यार, आप क्या माफ़ करना मेरे दोस्त। मैं भारत के उन नागरिकों में से हूँ जो कि आने वाली जनरेशन के लिए, खासकर शिक्षा के लिए बहुत चिंतित है। मैं चाहता हूँ कि हमारी आने वाली जनरेशन आर्टिस्टिक हो, थिंकर हो, क्रिएटिव हो, इनोवेटिव हो। इसीलिए जब भी इस तरह के जब इवेंट होते हैं, जैसे कि हमारे दीपक चौधरी जो हमारे दोस्त हैं, इन्होंने एंटरटेनमेंट का जो इवेंट रखा है, तो सबको प्रोत्साहन दिया है कि आप जितने भी स्कूल्स हैं जो कि डिज़ाइनिंग में, कम्युनिकेशन में, आर्टिस्टिक टेम्परामेंट में स्कूल खोल रहे हैं, उनका एक आपस के अंदर संग्रह कराया है और बच्चों को प्रोत्साहन मिले। मैं जानता हूं कि आने वाली जनरेशन जो है वो मीडिया में, आर्ट में, सिनेमा में, फिल्मों में, टेलीविज़न में, डिजिटल में बहुत काम करना चाहती है। वो एक रेगुलर एजुकेशन नहीं चाहती है। तो उसके लिए भी जो ये चीज़ें प्रयास है, हमारे पॉलिसी मेकर्स को, हमें फिल्म मेकर्स को, हमारे सीनियर लोगों को सोचना चाहिए। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि जो यंगर जनरेशन है आज, उसके पास सब इंफॉर्मेशन है, सब नॉलेज है, पूरा नेट है, पूरा डिजिटल वर्ल्ड है उसके सामने। आज वो कर सकता है। हमारे टाइम पे तो कुछ था ही नहीं। हम तो सिर्फ आसमान में देखकर अपना चित्र बनाते थे। अभी चित्र तो इतने बड़े हैं और नॉलेज, विजडम इतनी बड़ी है कि आप असली एंशिएंट नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। आप वो जो 4000 साल पहले ट्रुथ किया था, उसको आप खोज सकते हैं। तो इस तरह की शिक्षा, इस तरह की कम्युनिकेशन जो डिज़ाइनिंग है, वो तभी आएगी आपको। आप एक्सेल तभी करेंगे जब आप एंशिएंट आर्ट से जुड़ेंगे। जैसे कि हमने विस्ली वुड्स के अंदर एक फिफ्थ वेदा शुरू किया है, जिससे कि हम अपने बच्चों को पहले एंशिएंट आर्ट से भी जोड़ते हैं। मॉडर्न आर्ट्स, कंटेम्प्रेरी डांस से लेकर वो क्लासिकल डांस जो 3000 साल पहले हुआ था, उसको भी जोड़ते हैं। तो जब इस तरह की एजुकेशन शुरू होती है, और मैं ये आशा करता हूँ दीपक जी कि आपका भी जो ध्येय है और आपकी भी जो फिलॉसफी है, इसी तरह की एजुकेशन की है कि जब डिज़ाइन की बात करते हैं तो आर्टिस्ट की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो आर्टिस्ट की बात करते हैं। आर्टिस्ट का मतलब खाली एक्टर नहीं होता। आर्टिस्ट का मतलब है कि आपका आर्टिस्टिक टेम्परामेंट, एक कम्युनिकेट करने का तरीका, एक सोचने का तरीका, एक डिज़ाइन करने का तरीका, एक पेंट करने का तरीका। तो ये एक बहुत ही अच्छी संस्था है, मैं कहूँगा कैपिटल इवेंट आपकी, जिसमें कि इन चीज़ों को दिल्ली में 2 दिन किया आपने, अभी बॉम्बे में किया, अभी कलकत्ता में भी करने वाले हैं। 31 में कलकत्ता, 31 को कलकत्ता में भी हो रहा है। और इस तरह की और भी संस्थाएं जो हैं, मैं उनको चाहूँगा कि वो इसको प्रोत्साहन दें, ताकि बच्चों को लगे कि हाँ, हमें रास्ता दिखाने वाले एक सीनियर लोग हैं। generation and all of that. So does it upset you or dishearten you when the government is not coming out to complete support of different words? जी हाँ, बिल्कुल दुख होता है। दुख इसलिए होता है कि जो विजुअल हम लोग लेके चले हैं कि आने वाली जनरेशन को हम आर्टिस्टिक टेम्परामेंट में, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में बनाएंगे, उनकी प्रोग्रामिंग करेंगे नई एजुकेशन का, और उस वक्त जो है पॉलिसी मेकर या सरकार जो है उस वक्त आपका साथ नहीं देती है, क्योंकि उनको वो विजन ही समझ नहीं आता है। वो अभी तक वो 50 साल पुराने ब्रैकेट में वो जुड़े हुए हैं। उनको नए विजन की बात करें तो उनको वर्ल्ड विजन अच्छा लगता है, लेकिन विजन क्या है वो मालूम नहीं है कि आने वाला जो फ्यूचर टाइम है वो क्या है। ये हमने जो विस्लिंग बोलते हैं, हमने 2001 में ही हमने शुरू किया था विद द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जबकि आर्टिस्टिक स्किल बनाएंगे, फिफ्थ वेदा जैसे सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे, एंशिएंट हिस्ट्री बढ़ाएंगे, एंशिएंट आर्ट समझाएंगे लोगों को, बच्चों को, ताकि हमारे रियल भारत जो है
अगर वो विद्वान था तो कल फिर से विद्वान होगा। तो हमारी नीयत जो थी और विजन था वो ऐसा ही है। और काश हमारी सरकार भी हर चीज़ में टेक्निकलिटी है, हर चीज़ में ये है, हर चीज़ में, तो फिर अगर लैंड जो है वो एजुकेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है तो उस देश का क्या होगा? आप बताइए। Also, newcomers are doing the remake of Hero. Nikhil Advani is, directing अब ये Salman Khan. असली प्रोग्राम में है। So I just, we're just curious, have you seen the rushes of the film and what are you expecting from this film? Of course, Salman is producing. देखिए, क्योंकि वो फिल्म मैंने बनाई थी, तो मैंने जब सलमान ने मुझे कहा कि चलो पार्टनरशिप करते हैं, ये फिल्म शिवाजी हम मैं आप और मैं मिलकर बनाते हैं, तो मैंने बोला भाई मैं तुम्हें अपने राइट्स दे देता हूँ, लेकिन फिल्म का विजन तुम्हारा होगा, तुम्हारे डायरेक्टर का होगा। मैं इसमें ना कुछ भी ना कंट्रीब्यूट करूँगा ना इंटरफेयर करूँगा, कि आप जो है आप आज के ज़माने के हिसाब से बनाएंगे। मैं अगर इंटरफेयर करूँगा तो कुछ ना कुछ पुरानी बंसरी लेके आऊँगा, उसका फ़ायदा क्या है? कोई भी फिल्म दो आदमी नहीं बना सकते, एक ही आदमी फिल्म बना सकता है। तो ये जो वीडियो बनी है ये निखिल आडवाणी की विजन से है, अंडर द सुपरविजन ऑफ सलमान खान। तो मेरा इसमें कुछ नहीं है, मुझे ये सिर्फ उम्मीद है, मेरे पास होप है और विश्वास है कि ये फिल्म जो है हमारे हीरो से भी बेहतर होगी, ये मैं जानता हूँ। हाँ, तो ठीक, क्यों मैं बुराई करूँ तो ही ठीक है। मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा कि मैंने उसका कहा कि ये नहीं, सब कुछ बुराई चीज़ें नहीं, वो नहीं बन सकती। Hero was iconic. You can't really. नहीं, वो ठीक है, ऐसा नहीं होता है। जब हम यंगस्टर थे तब पहले लीमर लॉय आइकॉनिक थे, राज कपूर आइकॉनिक थे, तो हर जनरेशन जो है 35-40 साल के बाद बदलती है। और वो पुरानी कहानियों को लेकर ही, क्या वो एपिकल कहानियाँ हो, रामायण महाभारत हो, पुरानी स्टोरीज हो, हमने भी कौन सी अभी ओरिजिनल स्टोरी बनाई, हमने भी पुरानी स्टोरी की अडॉप्टेशन किया, लेकिन उसको हमने जब रीट्रांसलेट किया, हमने अपने तरीके से किया। आज बच्चे जो कर रहे हैं रीट्रांसलेट कर रहे हैं, कुछ वेस्टर्न सिनेमा ले रहे हैं, कुछ यूरोपियन ले रहे हैं, कुछ अमेरिकन सिनेमा ले रहे हैं। आप देख रहे हैं जैसे पिक्चरें जो हिंदी बन रही हैं हमारी, तो सब तरह का सिनेमा है आज भी, और अच्छा काम कर रहे हैं बच्चे। Have you seen any of the rushes of the film? Or मैंने उसका एक स्टिल भी नहीं देखा है अभी तक। Alright. Well, before yesterday you went to see Salman. There has been release for him currently. What did you have to say? What is your thoughts? देखिए, हमारा देश जो है ना बहुत खूबसूरत देश है। इसमें एक चीज़ है जिसका नाम है जुडिशरी, और जुडिशरी जो है वो उसमें एक अपनी ब्यूटी है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 1 है वर्ल्ड में का, उसमें से जुडिशरी भी नंबर 1 है। आपको अन्याय नहीं होने देंगे। आपके पास एक दरवाज़ा नहीं, 5 दरवाजे रखे हैं उन्होंने, कि अगर आपको सेशन कोर्ट में अगर गलत जजमेंट मिलती है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, फिर आप रिव्यू पिटीशन में आ सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर तभी तो ये होता है कि अगर किसी को फांसी भी मिलनी हो तो 6 साल, 8 साल, 10 साल लग जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी का नुकसान होने से पहले जुडिशरी कहती है कि हम 10 बार सोच लें, 10 दरवाजे उसके लिए खुले हैं। एंड दैट इज़ द ब्यूटी। इसीलिए जो सलमान के साथ हुआ, तो अगर एक जुडिशरी ने कहा, एक कोर्ट ने कहा, तो दूसरी कोर्ट उसको रिव्यू करेगी, दूसरी कोर्ट उसका फैसला करेगी। तो जहाँ तक सलमान का सवाल है, हम सब जानते हैं, हमारे पत्नी जानते हैं कि ही इज़ द फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग। उसने दुनिया के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया है। तो अब ये चीज़ें जो हैं, एक आप दुर्भाग्य किसको बोलते हैं? इसी को दुर्भाग्य बोलते हैं ना। एक्सीडेंट हो जाता है, मेरी बाजू कट जाती है, टांग कट जाती है, मेरा दुर्भाग्य नहीं रहा। और दुर्भाग्य आ गया तो कुछ नहीं चलता। लेकिन ये है कि उसने, जहाँ तक इंसान की बात है, सलमान एक बहुत खूबसूरत इंसान है, और आप सब जानते हैं, मेरे कहने से कुछ नहीं होता। You mentioned day before yesterday. What was the film? Sorry, नहीं, but कुछ- we are at a forum which is not relevant, so we'll have to stop now. हम लोग अलग कर Yeah, लेंगे ना बाकी, yeah. अकेले में मिलेंगे, सारी ज़िंदगी सलमान की बातें करेंगे। Sorry. लेकिन फोरम जो फोरम है वो इम्पोर्टेंट ये है कि आप आए और आप इसको इनकरेज कीजिए। ये एंटरटेनमेंट जो है, ये एक नया किस्म का कॉन्सेप्ट है दीपक जी ने निकाला है, जिसमें कि एजुकेशन भी है और एंटरटेनमेंट भी है, और वही अभी शिक्षा प्रणाली जो है आने वाली कामयाब होगी, नहीं तो नहीं होगी। Thank you.